अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अनीसा डार फ्रॉम कार्नेलियन प्राइवेट लिमिटेड। आई होप आप सब अपना ख्याल रख रहे हैं और सेफ़ हैं इस वक्त इन चैलेंजिंग टाइम्स में और इस अनसर्टनिटी के हालात में। आई अंडरस्टैंड कि लॉट ऑफ अस आर गोइंग थ्रू a decision making process which is very challenging but at the same time very crucial. तो उसी हवाले से I thought today that I would refer to चिप एंड डैन हीथ की एक बुक है कॉल्ड डिसाइसिव, जिसके अंदर वो 4 विलन्स के बारे में बात करते हैं दैट हिंडर योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और मेक इट इनइफेक्टिव। पहला विलन है नैरो फ्रेमिंग। नैरो फ्रेमिंग का लिटरल मतलब यही है कि आप अपने फ्रेम को नैरो कर रहे हैं, आप चीज़ों को एक तंग नज़रिए से देख रहे हैं और इसका नुकसान ये है कि यू विल बी मिसिंग आउट ऑन ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज दैट कुड हैव सूटेड योर पोजीशन बेटर। For a fact that a lot of organizations are going into restructuring. तो अगर आपके डिसीजन मेकर्स इस चीज़ को नैरो तरीके से देखेंगे कि either we'll have to lay 20 people off or we'll have to shut our business down, तो you might be missing out on options or might be missing out on revenue streams that you could have generated using those 20 people. Maybe there could have been another alternative strategy that you could have taken. फिर आ जाते हैं हम confirmation bias पे, which is the second villain of decision making. Confirmation bias is like the Mogambo of all villains because all of us know about it, all of us have seen it. There are preconceived notions with all of us. There are fears that all of us like to align our thoughts and processes with. उससे होता ये है कि अगेन आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो उस डिसीजन के लिए ज़रूरी है वो मिस आउट कर रहे होते हैं। जैसे करंटली इफ़ यू आर बायस्ड, you've already developed a bias regarding the Chinese origins of the virus, तो it might be easier for you when people are saying कि हाँ जी चाइना ने अब ये कर दिया है, चाइना ने अब वो कर दिया है. The news might be more digestible to you, which again limits your ability to accept other narratives which might be useful to your decision making process. Third villain of decision making, which is short term emotion. इस वक्त ऐसी हालात हैं कि हम सब के इमोशंस बहुत अप एंड डाउन, एक रोलर कोस्टर चल रही है. आई एम एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ दैट. एंड होता यही है कि when you are being very emotional, when you are possibly replaying arguments in your head, you're wasting time and energy, and emotion has the highest tendency to interfere with logic. तो ज़रूर रिफ्लेक्ट करें, ज़रूर पॉज करें और सोचें कि ये मैं जज्बाती तो नहीं हो रहा. इज़ इट रियली द केस? शुड आई, इज़ दिस द पॉसिबल बेस्ट डिसीजन? फाइनेंशियल्स को देखें, लॉजिस्टिक्स को देखें, जो सारी चीज़ें आप जनरली जिनका ख्याल रखते हैं उनके बारे में सोच के आप एक डिसीजन पे आएँ. फिर आ जाते हैं हम अपने आखिरी विलन ऑफ डिसीजन मेकिंग पे, विच इज़ ओवर कॉन्फिडेंस. Overconfidence is basically knowing that what the future holds. Right? Nobody knows what the future holds. So if you are being overconfident about something, let's say you have already planned a big event for the summers and you are very sure कि जी जुलाई में end हो जाएगा COVID-19, so I can call my friends from abroad, I can ask my family to come in and everything can go the same way. You're probably just going to end up wasting money. You're probably going to end up wasting your energy, and the heartbreak that you might feel if the COVID-19 situation still prevails and the financial burden that you will feel, it will also be very problematic. So just make sure you are not being overconfident about things and you are looking at your facts and also consulting with other people before taking such a decision. So आज हमने 4 विलन्स की बात की. पहला था नैरो फ्रेमिंग, दूसरा था कन्फर्मेशन बायस, तीसरा शॉर्ट टर्म इमोशन एंड चौथा ओवर कॉन्फिडेंस. I feel that you can tackle all of these villains and you can fight with them with a few strategies if you apply them in your daily life. एक तो ये कि आप अपनी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन को ज़रूर देखें कि आप एक ही सोर्स से इन्फॉर्मेशन और एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं दे रहे. आप फैक्ट चेक करें, आप इधर उधर लोगों से कंसल्ट करें. दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके डिसीजन, ऐसे डिसीजंस जो दूसरे लोगों को अफेक्ट करते हैं, दे नीड टू बी पार्टिसिपेटरी. स्टेक होल्डर्स शुड बी कंसल्टेड, एक्सपर्ट्स शुड बी कंसल्टेड फॉर देयर ओपिनियन. सो यू नीड टू लुक एट अदर पीपल फॉर टू हेल्प you in this time, which is more challenging and much more stressful than your general working environment. तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म डिसीजंस पे और शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन और आएगी, जैसे जैसे हालात चेंज होंगे, आपके डिसीजंस भी चेंज होंगे. तो कीप योर सेल्फ ओपन, कीप योर स्ट्रैटेजीज adaptable and make sure that you are involving other people in your decision making process. I hope इस वीडियो ने आपकी किसी तरह हेल्प की होगी आपकी पर्सनल या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में. और अगर आपको और कुछ तरीके पता हैं जिससे हम इन विलन्स से लड़ सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.